हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और किंग खान के नाइट राइडर्स इस सीजन डीपी वर्ल्ड ILT20 में कुछ ऐसे ही बाजी पलटते दिख रहे हैं। हालांकि पिक्चर अभी बाकी है और आज उनके सामने खड़ी है जीत की हैट्रिक लगा चुकी वो टीम जिनके आतिशी गेंदबाजों को खेलना अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। क्या पर्पल ब्रिगेड में दम है एक और उलटफेर करने का, या फिर टूर्नामेंट में जारी रहने वाला है MI एमिरेट्स का दबदबा? जी देखिए, उस फेज पे आ गए हम डीपी वर्ल्ड ILT20 सीजन 2 में, जहां पे अगेन यूर रिपीटिंग द फिक्सचर्स। कुछ ही दिन पहले मिले थे ये दोनों एक दूसरे आमने सामने, माई एमिरेट्स और अबू धाबी नाइट राइडर्स। यहां पे एक बार फिर जायद क्रिकेट स्टेडियम पे आपको दिखेंगे भाई। 4 अंक आ चुके हैं। माई एमिरेट्स की बात करें तो 4 मुकाबले खेले, 3 जीते हैं, 6 अंक। वही नाइट राइडर्स की बात करें तो भाई उनके पास हैं 4 अंक। कल रात को खेले थे, जीते थे। कहीं ना कहीं चाहेंगे कि ट्रेंट बोल्ट और ये जो पूरी टीम है, सुपरस्टार से भरी टीम, चाहे पूरन साहब हो या ऑफ कोर्स UAE की वसीम साहब हो, उनको रोकना चाहेंगे। अच्छा खेले थे एंड कहीं ना कहीं रिपीट परफॉर्मेंस 24 घंटे में देना पड़ेगा ड्रे रस एंड कंपनी। लेकिन इससे पहले की और बातचीत करें, लेट्स गो टू द सेंटर for the all-important toss with Danny Morrison. Rightio, all in readiness for the coin toss. Super Sunday and all the sun is out. Very exciting match 12 here in season 2. But very exciting times because of what's going on around the globe. And of course, the 3 wise men alongside me. I've got the 2 captains. I've got Nicholas Poran of the My Emirates. And of course with the local lad himself, Sunil Narayan with the Night Riders. And Steve Bernard from Australia. Very excited about the win for the West Indies, weren't we? It was a very good day. We can't get right into that right now, but naughty, but nice. But the coin is with you, Nicholas, please. Tails. It's a head. Did he? Yeah, he called tails. Have you? You sure now? We have some confusion here on a Super Sunday. Now, all the excitement. You're going to do what? We're going to have a bowl first. Everyone tends to. Look, it's a fresh-looking surface, but you guys are going all right. Everyone's well, aren't they? Yeah, everyone is fine. Yes, we're going well, but again, it's a new day. It's a new conditions for us. It's the first time we're playing at 2:30, so we have to assess it. Yeah, it is a bit different. You're right. Does that affect the balance of your side? No, not really. So you're going to go with the same team? Same team. And how are you feeling personally? I'm all good. How good was the win at the Gabba? Brilliant. Congratulations to West Indies. Yeah. Brilliant day for them. And it's inspired you guys for sure. Definitely. You better get some runs. I hope so. Thank you, Nicholas. Very good. Working. Yeah, very excited because, okay, they're going to bowl, but that doesn't mean, I mean, day game, the sun's out all the time, doesn't make a difference, does it? Yeah, I think there's no due factor, so I think if we go there and give a good showing in the first start, I think it'll be good for us to have a score on the board so we could hopefully go out and defend it. Exciting yesterday. You needed a win, but can you tell us quickly, what do you put your finger on that down to yesterday's performance? I probably think a total team effort. I think we started good with the ball in the middle phases. We controlled, and then with the bats, I think Alishan played a brilliant inning. So I think once we have that brilliance in 2 or 3 players, I think we should come out on top. Does yesterday's performance affect anything with your playing 11? No. We have the same team. And well done to the West Indies at the Gabba. Thanks. Well done, West Indies. Yes, thank you, Sunil. Well, there you have it, the excitement of the toss with everything happening around the globe and here in Abu Dhabi. I can tell you that Nicky P and the MIs won the toss, going up front and bowl early. देखिए जी, निकी पी साहब से उन्होंने बातचीत करने की बड़ी ट्राई करी। उन्होंने कहा, आर यू एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड। आर यू हैप्पी? वेरी हैप्पी। एनी चेंजेस? नो चेंजेस। ये था जबरदस्त इंटरव्यू। फिलहाल आपको दिखा दे शो पे आज के लिए क्या क्या है। बहुत कुछ चीजें हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। रोक सको तो रोक लो, क्या है माई एमिरेट्स के सॉलिड फॉर्म का राज? टूर्नामेंट में 7 विकेट चटका चुके फजल हक फरूकी से होगी एक खास मुलाकात। और नाइट राइडर्स की कल के जीत के हीरो से आज फिर लगी ढेरों उम्मीदें।
हाँ जी, देखिए जी, टॉप लेवल स्पोर्ट के तो ये रिवाज है ना, एक दिन अगर आपने काम कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि जी शीशे के महल पे बैठ गए, फिर करो अगले दिन, उसके बाद फिर करो अगले दिन, एंड दैट इज व्हाट इट मींस टू सक्सीड एट टॉप लेवल स्पोर्ट। भाई मेरे साथ हैं हरभजन सिंह, विवेक राजदान सर, गुड टू सी द टू ऑफ यू। हमारी तो बातचीत हुई थी कि जी बिना जैकेट के आएंगे, ये तो उल्टा हो गया थोड़ा। हाँ, इन्होंने पहनी हुई थी तो मुझे भी पहननी पड़ गई। मैंने कहा यार फिर दोनों एक जैसे तो लगे, है ना, कि पूछने वाला एक, बताने वाले दो जी। तो ये ऐसे करके हमने जैकेट पहनी। वही आपने स्लिप फील्डिंग वाले आपने चश्मे नहीं देखे थी? वो नहीं है, बंदा ऐसे है। सारे कैच आज यही पकड़ेगा। लग रहा है। विवेक भाई, माय एमिरेट्स की अगर हम बात करें, अगर आप उनकी बल्लेबाजी की बात करें, हालांकि यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, रिवाज सा है यहाँ पे टॉस जीतो गेंदबाजी करो, लेकिन बल्लेबाजी बहुत तगड़ी लग रही है सर। अगर आप स्पेशली लाइक कुशल परेरा, व्हेन दे गेट गोइंग, इतने फ्री फ्लोइंग लगते हैं ये लोग। और वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन भी कितना काम आता है ना, जब ये बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, दूसरे छोर पे एक दाहिने हाथ का कोई एक विस्फोटक बल्लेबाज होता है तो इनका कार्य और आसान हो जाता है। लेकिन एक चीज़ जो इन पे, जब खास तौर पे जब आप इनके खिलाफ गेंदबाजी करें ना, एक गेंदबाज के तौर पे, वो पीछे खिंची हुई लेंथ ना दें, क्योंकि उसी लेंथ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो शुरू में अगर गेंद हल्का सा भी, थोड़ा सा भी हिल रहा हो ना, तो थोड़ा इनके करीब लेके आप लेंथ चले, अगर आप इनको तंग करना चाहते हैं। नहीं तो ये जिस फॉर्म में है, जिस तरह की इन्होंने बल्लेबाजी अभी शारजा में करके दिखाई है, जी जी, अगर ये अपने रंग में आ गए तो फिर बहुत दिक्कतें आएंगी गेंदबाजों के लिए। भाजी दूसरी ओर राइट अगर हैंडेड, कुशल है तो सब मंगल है, सब मंगल है। और नीचे आते हैं पूरन, हाँ, वो काम कर देते हैं संपूर्ण। वो जिस दिन वो चलते हैं काम खत्म कर देते हैं। सर पूरन तो मतलब आते हैं, लेकिन फ्लेचर जैसे भी हैं, मतलब आ रहे हैं तो 25-30 रन तो बना के जा रहे हैं फॉर श्योर। देखो, कोई भी घर बनाना हो तो नींव अच्छी होनी चाहिए, तो इनकी जो नींव रखते हैं ना, कुशल और साथ में आप फ्लेचर की बात कर रहे हैं, हाँ जी, तो ये नींव बहुत अच्छी रखते हैं, जिसके कारण इनको आप देखेंगे हमेशा अच्छा स्टार्ट मिलता है। और स्टार्ट अच्छा मिलने के कारण फिर बीच में आपके आते हैं पूरन जैसे बल्लेबाज, फिर आते हैं टिम डेविड एंड में, तो किस किस को रोकोगे? इसी के कारण ये टीम जो है वो बाकियों से अलग नजर आती है। जब ये खेलती है 20 ओवर, ये 180 का पहाड़ा तो आराम से छूती है, और जिस दिन अच्छा खेलते हैं 210 220 भी कर जाते हैं। भाई इनको रोकना मुश्किल है। आज सुनील नरेन को, उस दिन भी मैंने कहा था, सुनील नरेन को आगे आना होगा, 2-3 विकेट चटकाने होंगे, और वो भी पूरन का। अगर पूरन को आउट नहीं करेंगे तो फिर काम जो है वो मुश्किल हो जाएगा। जी देखिए, यहाँ पे जो माय एमिरेट्स की अगर आप बात करते हैं ना, सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी अगर आप बात करें, अक्सर वहाँ पे जो पिच है ना, वहाँ पे घास है, और जो तेज गेंदबाज है ना, उसकी आंखें ऐसी बड़ी हो जाती हैं, थोड़ी डिसीविंग होती है। बट फारूकी साहब से हमने बातचीत करी, फजल हक फारूकी ने, उन्होंने बताया कि जब घास देखते हैं तो आप उसको कितना सीरियसली लेते हैं। एक गेंदबाज जिसने बड़ा प्रभावित किया है, फजल फारूकी मेरे साथ हैं, जिस लय में नजर आए हैं। मतलब मुबारकबाद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी आप कर रहे हैं और ऐसे ही आप करते जाइए। पर क्या आपको सोच होती है जब आपको सतह में वो घास नजर आती है, एज अ फास्ट बॉलर थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रास के बारे में तुमने पूछ लिया, जिस तरह जो भी फास्ट बॉलर होता है, स्पेशली सीमर होता है, अगर उसको थोड़ा सा विकेट से थोड़ा ग्रास नज़र आया वो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा खुश होता है कि इसमें तो कुछ ना कुछ तो होता है। तो मैं देखता हूँ कभी कभी स्पेशली एशिया कंडीशन में इस तरह होता है कि ग्रास नज़र आता है तो उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं पहले दिखता हूँ 2-3 बॉल करता हूँ कि उसमें अगर मेरे को सपोर्ट मिल रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि टीम के लिए ब्रेक थ्रू करूँ, विकेट ले लो और रन ना दे दो। अगर कुछ स्विंग कुछ नहीं हो रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ उसको ईजी बाउंड्री ना दे। अच्छा, नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं, थोड़े से ये अपनी ग्रिप के बारे में बताइए फजल, कैसी आप ग्रिप रखते हैं और क्या प्रयास करते हैं ओपनिंग बैट्समैन के विरुद्ध? मेरा तो दोनों सेम पोजीशन ऑलमोस्ट, ये जो ग्रिप पोजीशन होता है ऑलमोस्ट सेम ही है, मैं इस तरह ही पकड़ता हूँ। ये अगर मैं इन स्विंग करता हूँ, कोशिश करता हूँ ये रिस्क को लॉक करता हूँ, कोशिश करता हूँ इस तरह ये सपोर्ट पुश करता हूँ पीछे से ये अंदर आए राइट हैंडर के लिए। और जब मैं आउट स्विंग भी करता हूँ उसके लिए भी मेरा सेम ऑलमोस्ट सेम होता है। ये जो मेरा रिस्क पोजीशन होता है इसको थोड़ा सीधा करता हूँ, लास्ट में इसको ये पुश करता हूँ, ये तो फिर मैं आउट स्विंग करता हूँ। मेरा सेम पोजीशन उतना चेंज नहीं होता, कोशिश करता हूँ तो ये हाथ से थोड़ा सा मैं स्विंग करूँ। और जब गेंद थोड़ी पुरानी हो जाती है, जब अंतिम ओवर्स के लिए आप आते हैं, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं, तब क्या सोच रहती है? डेथ ओवर में यार किसी का एक अलग स्ट्रेंथ होता है, ये जो जिसका स्लो वन होता है, जिसका किसी का यॉर्कर होता है, तो मैं ज़्यादा खुश हूँ यॉर्कर पे और स्लो वन पे। मैं देखता हूँ अगर विकेट में ये कभी कभी ये शारजा जैसे सारा विकेट होता है, हार्ड लाइन में आता है, उधर भी मारना मुश्किल होता है। जब सीधा विकेट होता है उधर कुछ भी नहीं होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ यॉर्कर करवा दूँ। यॉर्कर हो रहा है ज़्यादा यॉर्कर करता हूँ, एक सडनली एक स्लो वन करता हूँ, तो इसमें ज़्यादा मैं सोचता हूँ स्लो बॉल बाउंसर करता हूँ। ये चलिए, ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी बोल्ड, बड़ा मजा आता है आपको देख के। ऑल द बेस्ट फॉर दिस गेम एज वेल। थैंक यू, शुक्रिया। देखिए जी, ये खास बात है इस फॉर्मेट की, आपको हर वक्त कुछ ना कुछ बदलाव करते रहना पड़ेगा। एक गाड़ी ना एक ही सड़क पे चलती नहीं है। विवेक भाई हमारे साथ हैं। विवेक भाई, वहाँ पे घास है, बतौर तेज गेंदबाज कितना एक्साइटेड होते हैं, स्पेशली गिवन द फैक्ट ये तो जनाब है ही
लेकिन बोल्ट साहब भी है वहाँ पे पहले 6 पे। सबसे अच्छी चीज़ क्या है जब आप इन तेज़ गेंदबाजों के बारे में बात करते हैं और ऐसी पिचों पे जहाँ पे थोड़ी सी घास की परत होती है, गेंद टप्पा खाने के बाद किस तरह का कांटा बदलती है। आमतौर पे बल्लेबाज जो है वो ओरिजिनल लाइन खेलता है। ओरिजिनल लाइन है कि आपने देखा वहाँ से गेंद आ रही है और आपको लगा कि ये मेरी तरफ ही आएगी। अनुमानित लाइन जो होती है वो सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ पेश करती है। अच्छे बल्लेबाज तभी वो माने जाते हैं जो अनुमानित लाइन, अपना अंदाज़ा लगा के वो अनुमानित लाइन खेलते हैं। बोल्ट क्यों सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं? क्योंकि ये कभी भी ओरिजिनल लाइन पे गेंद नहीं चलती है। जिस लाइन पे ये गेंद छोड़ते हैं, टप्पा खाने के बाद वो गेंद लाइन बदलती है। अनुमान लगाना कठिन हो जाता है बल्लेबाजों के लिए और इसी वजह से ऐसे गेंदबाज जो हैं वो इतने घातक साबित होते हैं। ये इंडिकेटर भी नहीं लगाते, अपनी लाइन बदल लेते हैं। इंडिकेटर भी गाड़ी लेफ्ट हो गई, गाड़ी लेफ्ट हो जाती है, बल्लेबाज को पता नहीं चलता है किस तरफ जाना है और बल्लेबाज को आउट होना ही पड़ता है। सर दूसरी ओर आजकल आप 2020 क्रिकेट में, आजकल क्यों कह रहा हूँ, काफी टाइम से हम देख रहे हैं पीपल लाइक अकील हुसैन, पहले 6 में इनसे भी गेंदबाजी करवाओ, गलतियां करवाओ, तेज डालो, स्पिन ना हो जाए, ज़्यादा लाइन जरूरी है, पिच कहाँ पे और जरूरी है। अब पिच देखिए, ये तीनों विकेटों में गेंद करते हैं, ये ज़्यादा इनके पास ऑप्शन नहीं है कि इनके पास बहुत कोई लंबी चौड़ी स्पिन नहीं है, बट ये एक्यूरेट बहुत ज़्यादा है। स्टम्प टू स्टम्प गेंदबाजी करते हैं, ये ज़्यादा अपने कोई प्रयास नहीं करते कि कुछ अलग करे। ये आप देखेंगे 6 गेंदों में से 4 गेंदें अंदर की तरफ ही लेके आते हैं। शायद एक आध बॉल कोई ये स्पिन कराने की कोशिश करें, और जो लोग इनको विकेट छोड़ के खेलने का प्रयास करते हैं क्योंकि इनका मिड ऑन और मिड विकेट पीछे रहता है, तो फिर ये वो कोशिश करते हैं कि बोल्ड या एलबीडब्ल्यू करें। तो ये अकील ऊपर से इनके लिए घातक साबित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सामने छोर से जो है ना वो ये बोल्ट जो काम कर रहे हैं, बोल्ट को आप देखिए कोई भी बल्लेबाज आसानी से खेल नहीं पाता। जब अकील के सामने चांस लेने जाते हैं वहाँ मौका बनता है, प्रेशर बनता है, विकेट चटकाते हैं। अकील इज वेरी एक्यूरेट, बट आई विश ही कुड स्पिन लिटिल बिट मोर। थोड़ा सा और स्पिन कराए तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा विकेट भी पा जाएंगे। कभी कभी विकेट कॉलम जो है ना वो खाली रह जाता है उनका। भाई बनाते हैं वो, पकाते हैं बोल्ट और खाना लेके जाते हैं अकील हुसैन जैसे वहाँ पे खिलाड़ी होते हैं। वैसे पिच के बारे में बातचीत हो रही है तो पिच रिपोर्ट के लिए चलते हैं विद अजय मेहरा। एक और दोपहर का मुकाबला अबू धाबी में। जी हाँ, कल भी दोपहर का मुकाबला हुआ था, पर आज पहले शुरुआत करते हैं ग्राउंड डिमेंशंस के साथ। मेरे दाहिने तरफ एक छोटी बाउंड्री है 60 मीटर की, बाईं तरफ 75 मीटर और सामने की तरफ भी 75 मीटर है। अब फर्क क्या है? एक जो फर्क नजर आ रहा है, धूप खिली हुई है पर आज काफी हवा चल रही है अक्रॉस द ग्राउंड। और सतह क्या है? पिछला मैच जो खेला था, जो कल खेला गया था, वो पिच नंबर 5 थी, आज जो है पिच नंबर 8 है। फर्क ये नजर आ रहा है, हालांकि ठोस सतह है पर मुझे लगता है जो घास की मात्रा इस सतह में ज्यादा नजर आ रही है कल की तुलना से। काफी ठोस सतह है पर ये जो घास है इवन स्प्रेड नजर आ रहा है थ्रू आउट द 22 यार्ड्स, और एक ऐसी सतह है जहां पे तेज गेंदबाजों को शुरू में मुझे लगता है थोड़ा सा लाभ मिल सकता है। पर एक बल्लेबाज कल जिसने बड़ा प्रभावित क्या, वो थे शराफू। जिस अंदाज से वो खेल रहे थे, एक फर्क नजर आया तो क्लोज टू द बॉडी खेल रहे थे, और दूसरा जैसे कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे, आगे आके खेल रहे थे, गेंद को ऐसे मीट कर रहे थे। और अहम चीज जो थी उनके लिए कि सीधे बैट से खेलने का प्रयास करते। उसमें क्या होता है, जो कनेक्शन के चांसेस है, जो उनका संपर्क था, जो टाइमिंग था, वो बहुत बेहतर नजर आया। बहुत बढ़िया पारी थी, मुकाबला भी जिताया। तो लगता है बल्लेबाजों को वही करना पड़ेगा, जितना क्लोज टू द बॉडी आप खेलेंगे इस सतह के ऊपर, क्योंकि तेज गेंदबाजों को थोड़ी सी मूवमेंट मिल सकती है सतह के ऊपर। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो पहली इनिंग का जो स्कोर है, अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, कम से कम इस सतह पे 170 रन बनाने बहुत आवश्यक रहने वाले हैं। हाँ जी, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भाई हमने करी खास बातचीत शरफू के साथ, जिन्होंने कल खेली आलीशान भाई 82 रन की नाबाद पारी। छोटा सा ब्रेक, क्रिकेट सफारी जल्द आ रहा है आपके सामने। आहा, तबले वबले बज रहे होते हैं यार, क्या म्यूजिक होता है भाई, मजा आ रहा है वहाँ पे। वैसे मुकाबला कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और देखिए अबू धाबी नाइट राइडर्स ने ऑफ कोर्स बल्लेबाजी की है, MIM एमिरेट्स ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो मतलब कुछ ही देर में आलीशान शरफू हमारे सामने आने वाले हैं। कल रात को खेले थे 82 रन की नाबाद पारी और कहीं ना कहीं उम्मीद तो यही है ऐसी पारी आज फिर दिखे। To be very honest, personally speaking, I think they have the best bowling attack in this tournament. I try to play the ball on its merit and didn't try to see too much who was bowling, even though I did a little bit. But yeah, once I got in, it felt a lot easier. First boundary against Amir, it was an overpitched ball, squeezed it backward of point, and once I got my first boundary, it felt a lot easier, and from there on, try to play one ball at a time and carry on from there. A maiden
T20 half century. You know, the atmosphere was amazing. You know, even when I didn't do so well in the first 2 games, you know, the coach had a chat with me and he said, you know, tonight was going to be your night. Unfortunately, it didn't happen, but it happened in the 4th game. When I woke up in the morning, to be very honest, I did not. But again, you know, the team had trusted me, you know, given me the last 3 games and, you know, another game tonight. So just wanted to do whatever little I could for the team and, you know, glad it worked out tonight. My father, Sharafu, I hope he's feeling special because, you know, he sacrificed every Friday and Saturday for the last 10 years, you know, taking me to training and games, and, you know, they come and watch every single game I play, regardless of if I play or not. So, and they were here today again. So grateful for them for all the support, and you know, I hope they keep supporting me in the future as well. सुना आपने वहाँ पे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, नो एग्जीक्यूशन, नो माइंड सेट, नो बैक माई सेल्फ. अभी युवा खिलाड़ी है भाई, कह रहा है हर फ्राइडे और सैटरडे को मेरे पिताजी ने बलि लगाई है, आते हैं मुझे ऑफ कोर्स यहाँ पे सपोर्ट करते हैं. और अभी तो कारवां शुरू हुआ है दोस्त, टॉप लेवल स्पोर्ट का कारवां. सर कल किया, बीत गई बात, रात गई बात गई, आज फिर से कार्यक्रम शुरू करो. 2 लाइनें सुनिए फिर इनके बारे में. हाँ जी. उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है तब उनको अपनी मंजिल आसमानों में. क्या बात? तो वो अवेकनिंग की बात होती है. अंदर से जब जागरूकता बढ़ती है, जब वो अवेकनिंग आती है ना, फिर आप देखिए उस नौजवान को तो आप रोक ही नहीं सकते. तो मतलब ये हमारे लिए नहीं था ना, नौजवानों के लिए था. जी नहीं, आप 9 भी नहीं है, जवान भी नहीं है. हम हैं 3 और हम में से कोई भी नहीं है अब जवान. ठीक है सर, एक बार ये लाइनअप आपको दिखा देते हैं यहाँ पे भाई. दोनों टीम से एक बार वाकिफ करा लेते हैं. कोई बदलाव नहीं है वहाँ पे. अगर आप टॉस में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो दोनों टीम्स ने बताया ज़्यादा चेंजेस है नहीं. नाइट राइडर्स पहले बल्लेबाजी करेंगी, तो ऑफ कोर्स आप देखिए यहाँ पे शरफू साहब पे काफ़ी कुछ निर्भर होगा. एंड ऑफ कोर्स आंड्रे रसल एंड द लाइक्स कैसे वो उनको सपोर्ट करेंगे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी. और फिर माई एमिरेट्स की अगर आप बात करें तो गेंदबाजी पर भजी, फजल हक फरूकी, ट्रेंट बोल्ट, चाहे अकील हुसैन हो, दैट इज अ सॉलिड लाइनअप कमिंग एट यू सर. बिल्कुल. देखिए जो कल हुआ, इन्होंने जिस प्रकार की बल्लेबाजी करी, इनको वही अपना जो चीज़ों को ना सही करना है. कल देखिए 3 विकेट जल्दी खो लिए थे. कोशिश ये होनी चाहिए कि स्टार्ट अच्छा लें. स्टार्ट अच्छा मिलेगा तो फिर इनके पास बल्लेबाजी है. जो पिछले कुछ मैचों से ना इनका मिडिल ऑर्डर जो है वो बेटर दिखा है. इनके पास हैं, वो भी है, इनके पास हैं भी हैं और बाकी के वो भी है, और इनके पास रसल भी है, वो भी अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छा खेल रहे हैं. तो भाई 180 तो लगाना पड़ेगा इस टीम के साथ, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट माई एमिरेट्स. यू हैव टू स्कोर रन्स, यू हैव टू पुट रन्स ऑन द बोर्ड. क्विकली सर, प्रेडिक्शन. MI दिमाग तो माई एमिरेट्स कहता है, लेकिन आज दिल के साथ जाऊंगा. शाहरुख खान मेरे स्कूल में भी थे और हम स्कूल में क्रिकेट टीम में भी एक साथ खेलते थे, तो आज दिल से. क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात. अंगड़ाई ले ली यहाँ पे, पीट चुका है थोड़ी सी वहाँ पे. हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक. ऑन द अदर साइड लाइव एक्शन.